हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पे करिकुलम मॉडल्स लेके आई हूँ। हालांकि ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कुछ लोगों ने डिमांड किया था इसलिए मैं लेकर आई हूँ। ये बीएड के स्टूडेंट्स को काम आएगा क्योंकि इसमें कुछ करिकुलम डिजाइंस की भी चर्चा है, करिकुलम मॉडल्स की भी चर्चा है। हम लोग देखते हैं क्या है, देखिए किसके काम आता है। ये सीटेट के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग करिकुलम मॉडल को पढ़ते हैं। एज ए बीएड स्टूडेंट और एज ए education student you must know. So let us start. The word curriculum has roots in Latin. Latin से यह शब्द आया है. It originally meant racing chariot or came from a verb curere, which means to run. So why? To run करने के लिए एक बना रहता है, लाइन बना होता है जिसमें दौड़ना होता है. तो करिकुलम इज लाइक दैट लाइन अराउंड विच वी हैव टू रन और टीचर और स्टूडेंट्स आर. सो करिकुलम इंक्लूड्स बोथ curricular and co-curricular activities. The way we understand and theorize about curriculum nowadays has altered significantly over the years. Today, the most important simple definition of what curriculum is the subjects comprising a course of study at schools, universities, and colleges. So it is not only subject matter but also co-curricular activities included in the curriculum. Characteristics of a good curriculum: it should be motivating, challenging, and full of learning activities. Modifications that take care of individual differences, that is most important. Curriculum should be such that it should cater the needs of individual difference of people. Individual difference, we see that even two people are not all alike, so they are different, so their needs are different. So curriculum should be according to the need of variety of students or different students. So because all individuals are not similar, it should be flexible. There should be scope of changing it. It should be interesting. It should be according to the choice or taste of the students. So many points are there which makes a curriculum a good curriculum. What is curriculum design? So we must know curriculum design is in BEd syllabus. So we must know that too. So curriculum design is the deliberation of curriculum within a course or classroom. करिकुलम डिजाइन क्या है कि करिकुलम का डेलिबरेशन एक क्लास में, एक कोर्स में क्या है करिकुलम में, उसको अचीव करना. व्हेन इंस्ट्रक्टर्स डिजाइन देयर करिकुलम्स, जो भी इंस्ट्रक्टर होते हैं करिकुलम डिजाइन करते हैं, they identify what will be done, who will do it, क्या करना है, कौन करेगा, and when, कब होगा, as well as what the objectives of each course is. Curriculum designs, when we design or when a curriculum designer designs the curriculum, then he takes into considerations the points that what will be done during the course, who will do it, teachers, instructors, or special guest lecturers will be called for instructing the students, or when, and as well as what the objectives of each course is. So in curriculum covers many subjects. So each course or many course, so each subject what should be taught, and it all depends upon the philosophy of the country, need of the students, age of the students, all things determine. Curriculum contains knowledge and skills that a student needs to master in order to move next level. So curriculum
is designed in such a way that a student of certain class should be competent up to that level, then he can move to next higher level. By thinking about how their curriculum is designed, teachers ensure they have covered all the necessary requirements. From there, they can start exploring various approaches, and after designing the curriculum course, then they start exploring which approach or teaching method should be adopted to achieve these goals which the curriculum design has decided. There are three basic types of curriculum design. One is subject centered, another is learner centered, and problem centered design. So first of all, we discuss subject centered. What is subject centered curriculum? Subject centered curriculum design revolves around the particular subject matter or discipline. किसी एक सब्जेक्ट के चारों ओर, सब्जेक्ट मैटर के चारों ओर रिवॉल्व करता है, मतलब मैथमेटिक्स, लिटरेचर, बायोलॉजी, वॉट एवर सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से उसके कोर्सेज के अराउंड करिकुलम घूमता है या डिजाइन होता है. करिकुलम डिजाइन टेंड्स टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट rather than student. When we discuss the subject centered curriculum, the curriculum design tends to focus on the subject matter. What subject matter should be included in a particular class rather than the student. It is most common type of standardized curriculum that can be found in K-12 public schools. So, क्या पढ़ाना है, कितना नॉलेज देना है, जब ये डिसाइड होता है तो ये सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है. टीचर्स कंपाइल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्पेसिफिक एग्जांपल्स हाउ दे शुड बी स्टडीड. In higher education, methodology is typically found in large university or college classes where teachers focus on particular subject or discipline. So when specification is there, specialization is there, then the teachers focuses on the method of teaching along with the subject matter. Subject-centered curriculum design is not student-centered, and the model is less concerned with individual learning style compared to other forms of curriculum design. Subject-centered curriculum design emphasizes on the subject matter, not individual learning styles, how each and every student will be taught. It is not mentioned here. Here the subject is most important, and more importance is given on subject matter. This can lead to problems with student engagement and motivation and may cause students who are not responsible to this model fall behind. So subject centered curriculum is not very compatible with all the students. The students who are not who are not engaged with the subject matter, then they will have to stay or they will lay back in the class. So it is not very helpful to the learners. So this form of the second is learner-centered curriculum design. By contrast, revolves around the student needs. First, we have seen student-centered, subject-centered, which revolves around the subject matter. So, where in subject-centered curriculum, students have to suffer, but when we come to the learner-centered curriculum, it revolves around the students and it is formed according to their needs, interest and goals. इसमें क्या है, स्टूडेंट के नीड, इंटरेस्ट और उनके लक्ष्य के हिसाब से बनाया जाता है. इट एक्नॉलेज दैट स्टूडेंट आर नॉट यूनिफॉर्म. ये इंडिविजुअल डिफरेंस को कंसीडर करता है और उनके नीड्स को कैटर करने के लिए क्या करता है, इंडिविजुअल्स देयरफॉर शुड नॉट इन ऑल केसेस बी सब्जेक्ट टू स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम. तो यहाँ पर जो करिकुलम बनता है वो एक स्टैंडर्ड मानक करिकुलम नहीं बनता. इतने साल के बच्चे के लिए यही करिकुलम होगा, क्योंकि ऑल चिल्ड्रन, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल लर्नर्स आर नॉट इक्वल, of equal capacity, equal standard. So here the curriculum should be
सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड। देयरफॉर यहाँ पर जो भी करिकुलम है वो बच्चों के हिसाब से, उनके नीड से होता है। दिस अप्रोच एम्स टू एम्पावर लर्नर्स टू शेप देयर एजुकेशन थ्रू चॉइसेस। यहाँ पर बच्चों को चॉइस मिल जाता है, वो अपने चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट लेते हैं और अपने चॉइस के सब्जेक्ट लेते हैं तो वो सब जो सब्जेक्ट का करिकुलम होता है वो उन्हें सूट करता है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शनल प्लान प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू सेलेक्ट। यहाँ पर क्या हुआ कि इंस्ट्रक्शनल प्लान जो होता है इस तरह के करिकुलम में जो लर्नर सेंटर होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है, उसमें विभेदीकरण क्या होता है, अलग अलग तरह से अलग अलग बच्चों को या अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये इंस्ट्रक्शनल प्लान जो होता है वो बच्चों को असाइनमेंट चुनने में, टीचिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज को सेलेक्ट करने का अवसर देता है। दिस फॉर्म ऑफ करिकुलम डिजाइन हैज बीन शोन टू एंगेज एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करता है और उन्हें एंगेज भी रखता है। बट what is the drawback of such curriculum is that it can create pressure on the educator। यहाँ पर educator को pressure आ जाता है to source material, he has to provide source material specific to each learner's need। हर लर्नर अलग अपने चॉइस से सब्जेक्ट लेता है तो उसके उस चॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मटेरियल्स प्रोवाइड कराना टीचर्स के लिए प्रॉब्लम होती है। दिस कैन बी चैलेंजिंग due to resource constraint। Balancing individual student interest with the institution's required outcomes could be, ये डिफिकल्ट हो जाता है इसको हैंडल करना या इसको सफाइस करना, इसको फुलफिल करना। द फॉर्म ऑफ करिकुलम डिजाइन हैज बीन शोन टू एंगेज एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स। दिस फॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, एंगेज करना। द ड्रॉबैक ऑफ दिस फॉर्म ऑफ करिकुलम डिजाइन इज दैट इट कैन क्रिएट प्रेशर ऑन एजुकेटेड टू provide learning materials according to students' needs। This can be challenging due to teaching time constraint, because teaching का टाइम जो होता है स्कूल का टाइम और फिर किसी कोर्स का ड्यूरेशन होता है वो फिक्स होता है। उस फिक्स टाइम में इतनी सारी चीजों को प्रोवाइड करने में दिक्कत होती है और उसको कंप्लीट करने में। बैलेंसिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट इंटरेस्ट विथ इंस्टीट्यूशन रिक्वायरमेंट, इट बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क। प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम, तीसरा हो गया प्रॉब्लम सेंटर्ड। एक हुआ सब्जेक्ट सेंटर्ड, दूसरा हुआ लर्नर सेंटर्ड, अब तीसरा है प्रॉब्लम सेंटर्ड। इस डिजाइन टीचेस स्टूडेंट्स हाउ टू लुक एट ए प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेट ए सॉल्यूशन। सच curriculum is designed to solve how to solve a problem। It provides knowledge to the students about solving a problem, considered an authentic form of learning because students are exposed in such curriculum, students are exposed to real life situations and students have to develop the skill which are transferable to real world। इसमें क्या होता है, कुछ नया सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाता है, कुछ इमरजेंसी क्रिएट कर दिया जाता है जहाँ पर स्टूडेंट्स को अपना ब्रेन यूज करना होता है और दे हैव टू solve the problem। The problem-centered curriculum design has been shown to increase the relevance of curriculum and encourage creativity, innovation and collaboration in the classroom। उसमें क्या होता है, बच्चे मिलजुल कर कुछ नए आइडियाज लाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। The drawback to this format is that it does not always consider individual। इसमें क्या होता है कि सब मिल के करते हैं तो हर बच्चा अलग अलग ढंग से इंडिविजुअली नहीं सीख सकता है, इंडिविजुअली लर्निंग स्टाइल को डेवलप नहीं करता है प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम। अब हमें पढ़ना है करिकुलम मॉडल। व्हाट इज करिकुलम मॉडल? अ मॉडल इज अ फॉर्मेट फॉर करिकुलम डिजाइन। एक फॉर्मेट हुआ कि इसमें करिकुलम का डिजाइन बनाया जाएगा, डेवलप टू मीट unique needs, contexts and purposes। In order to achieve these goals, curriculum is designed। हर मॉडल में कुछ क्या होता है कि मॉडल को एक फॉर्मेट बनाया जाता है जिसमें उसके हिसाब से करिकुलम को डिजाइन करना है। उसमें कुछ गोल्स होते हैं, कुछ भी एक कॉन्टेक्स्ट और कुछ पर्पसेस होते हैं। ऑफ कोर्स डिफरेंस इन कोर्स डिजाइन एग्जिस्ट। अ मैथ कोर्स taken at one university may cover same material, but the educator could reach it in a different way, but the core fundamentals of curriculum development remain the same।
मतलब क्या है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो फंडामेंटल कोर फंडामेंटल्स है करिकुलम डेवलपमेंट का वो सेम रहता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि पहला मॉडल, मैंने कुछ मॉडल लिया है। पहला है टाइलर मॉडल, ये पहला मॉडल है करिकुलम का, सबसे पहला। टाइलर हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस करिकुलम मॉडल इन 1949। बहुत सारे बुक्स में लिखा हुआ है 1940s, so 1940 to 50 it is called 1940s, so it is the specific year is 1914, but we can say that it has been developed in 1940s, years of 1940s. Book basic principles of curriculum and instruction for his students to give them an idea about principles for making curriculum. He has given 4 steps. Curriculum making का 4 steps उन्होंने दिया। पहला step is determining the objective of school or class. करिकुलम मॉडल बनाने के लिए पहला स्टेप है कि स्कूल का क्या ऑब्जेक्टिव है या क्लास का इसके लिए करिकुलम बन रहा है। Each subject has natural objective that are indicator of mastery. Every subject has one natural objective जो कि मतलब नहीं भी कहा जाए तो it is axiom कि उस सब्जेक्ट की मास्टरी, स्टूडेंट्स को मास्टरी देना जो भी सब्जेक्ट का पढ़ाई हो रहा है। इंडिकेटर ऑफ मास्टरी, ऑल ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी कंसिस्टेंट विद द फिलॉसफी ऑफ स्कूल। स्कूल इज रनिंग इन ऑन विच फिलॉसफी। हम लोग स्कूल देखते हैं कि बहुत तरह के स्कूल होते हैं, हर स्कूल का फिलॉसफी अलग अलग होता है। कहीं पर सनातन धर्म से जुड़ा होता है, कहीं पर मॉडर्निटी से जुड़ा होता है, कहीं पर ये क्रिश्चियन स्कूल्स मिशनरीज का होता है। तो हर स्कूल का फिलॉसफी के हिसाब से भी होता है कि ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी कंसिस्टेंट विद द फिलॉसफी ऑफ द स्कूल एंड दिस इज often neglected in curriculum development. For example, a school that is developing an English curriculum may create an objective that the students will write essays. This would be main or अगर मान लीजिए कि आप किसी सब्जेक्ट का करिकुलम बना रहे हैं, फिलोसफी तो वो ठीक है, इंग्लिश का करिकुलम बना रहे हैं तो इंग्लिश से रिलेटेड चीजें बच्चों को आनी चाहिए, जिसमें ये ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। दूसरा स्टेप ये है कि Step 2 is developing learning experiences that help students to achieve step 1. मतलब for example, if a student need to meet the objective of writing an essay, learning experience might be demonstrated by the teacher of writing an essay. अगर ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे राइटिंग ऐसे लिखना सीखेंगे तो टीचर को डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि कैसे ऐसे लिखा जाता है। The student then might practice writing essays. The experience is consistent with the objective. So यहाँ पर कुछ टाइपो एरर है, let me correct it. The students might practice in developing learning experience that help the students to achieve step 1. For example, if a student needs to meet the objective of writing an essay, the learning experience might be demonstrated by the teacher of writing an essay. The student then might practice writing essays. The experience is consistent with the objective. Step 3 is organizing the experience. Should the teacher demonstrate first or should the students learn by writing immediately? Either way, या तो टीचर दिखाए या तो स्टूडेंट लिखे, could work. Preference is determined by the philosophy of the teacher and needs of the students. The point is that the teacher needs to determine a logical order of experiences for students. Lastly, step 4 is the evaluation of the objective. मतलब क्या है कि ये स्टेप 3 में है कि ये एक्सपीरियंस करना है टीचर को। अब सवाल उठता है कि टीचर पहले लिखेगा या स्टूडेंट को खुद से लिखना है, तो ये टीचर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा है स्टेप 4 इज द इवैल्यूएशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? इवैल्यूएशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसका मूल्यांकन करना। नाउ द टीचर असेसेस द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू राइट एन एसे।
तो कैसे करेगा, कैसे असिस्ट करेगा टीचर? सो व्हाट आर द वेज दैट टीचर विल असिस्ट? तो फॉर एग्जांपल द टीचर कुड हैव द स्टूडेंट्स write could have saved the students to write an essay, could have saved the students to write an essay without assistance. If they can do this, it is evidence that students have achieved the objective. अगर वो बिना हेल्प के लिख देते हैं तो इसका इवैल्यूएशन हो गया ऑब्जेक्टिव का कि ये पूरा हो गया. देयर आर वेरिएशन इन दिस मॉडल, हाउएवर टाइलर मॉडल इज स्टिल कंसीडर्ड by many to be the strongest model for the development. It is the first and strongest model of the development, curriculum development. The next model is the grassroots models. The development of this model is the opposite to the first model. पहला मॉडल से उल्टा है. करिकुलम डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एंड एफर्ट्स नॉट फ्रॉम द अबव बट फ्रॉम द बिलो. वहां क्या था कि ऊपर से बन के आया करिकुलम और इट हैज टू बी फॉलोड, नेमली द टीचर और द स्कूल. अब क्या है? द फर्स्ट मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड इन एजुकेशन. करिकुलम इज सेंट्रलाइज्ड व्हाइल ग्रास रूट मॉडल विल इवॉल्व a decentralized education system. वहाँ क्या था कि ऊपर से करिकुलम बना आया और that has to be followed. यहाँ क्या है कि टीचर will prepare और यह जो भी है decentralized education system है. Development of or improvement can be related to a curriculum component, one or several fields of study or the entire field of study and all components of curriculum. When conditions are allowed in terms of ability of teachers, facilities and material costs of literature. क्या है? यहाँ टीचर्स करिकुलम बनाएंगे और उन्हें क्या फैसिलिटीज मिलेगी कि लिटरेचर जो भी है उसका मटेरियल, जो भी लिटरेचर आएगा, जो भी करिकुलम बनाने के लिए बेस के लिए मटेरियल्स चाहिए होंगे, वो सारा कॉस्ट बेयर करेगा. करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल ऑफ क्लास रूट सीम्स टू बी बेटर. दिस वाज बेस्ड ऑन द कंसीडरेशन दैट टीचर इज द प्लानर. क्योंकि उसे पढ़ाना है तो ही इज द प्लानर, ही और शी एग्जीक्यूटर एंड also falsifies the teaching in the class. He knows best the needs of. क्योंकि टीचर्स क्लास के नीड को बढ़िया से समझते हैं, so they should be given the charge of curriculum designing or making of the curriculum. Therefore, he was the most competent curriculum. तो उनके द्वारा जो curriculum बनेगा, it will be most competent for the class. अगला है टाबा मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट. टाबा मॉडल करिकुलम डेवलपमेंट जो है, टाबा, हिल्डा टाबा नाम था उनका पूरा. शी इज ऑलरेडी, द मॉडल वाज डेवलप्ड बाय हिल्डा टाबा इन 1902. her period is 1902 to 1967. An architect, a curriculum theorist, a curriculum reformer and a teacher educator. She was born in a small village of Purastil, Estonia. Taba believed that there has been a definite order in creating curriculum. उनका कहना था कि curriculum should be created in a sequence, in a definite order. Hilda Taba is the developer of Taba model of learning. This model is used to enhance the thinking skill of students. Thinking skill को develop करता है. Hilda Taba believed that there must be a process for evaluating students' achievement of content after content standards have been established and implemented. इनका कहना है कि वहाँ स्टूडेंट्स के अचीवमेंट को इवेल्युएट करने का एक प्रोसेस होना चाहिए जब कंटेंट स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश कर दिया जाए कि ये कंटेंट है, इसका ये स्टैंडर्ड होगा और वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो फिर स्टूडेंट्स के अचीवमेंट को हम इवेल्युएट करते हैं. द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस approach to curriculum development is that teachers must be involved. टीचर को, ये भी इनका भी यही मानना है कि टीचर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए करिकुलम डेवलपमेंट में. सी एडवोकेटेड टीचर्स टू टेक एन इंडक्टिव अप्रोच टू करिकुलम. सो व्हाट इज इंडक्टिव अप्रोच? इंडक्टिव अप्रोच में एक एक केस को, एक एक एस्पेक्ट को स्टडी करके तब फिर करिकुलम को बनाना. हर सब्जेक्ट का एस्पेक्ट, स्टूडेंट का एस्पेक्ट,
मतलब every point of view should be considered, टीचर का एस्पेक्ट, इंस्टीट्यूशन का एस्पेक्ट, फिलोसफी क्या है, सब्जेक्ट का फिलोसफी, स्कूल का फिलोसफी, टीचिंग का, सबको कंसीडर करके तब करिकुलम का ये इंडक्टिव अप्रोच होगा कि हर केस को, हर एस्पेक्ट को समझकर करिकुलम को बनाया जाए. शी एडवोकेटेड दैट टीचर टेक एन इंडक्टिव अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट व्हिच मेंट स्टार्टिंग विद द स्पेसिफिक एंड बिल्डिंग टुवर्ड ए जनरल डिजाइन. इसका मतलब है कि पहले स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसी तरह से कि किस चीज के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए करिकुलम बन रहा है, फिर उसके बाद उस हर सब्जेक्ट का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वो देख लेना है. उसके बाद उसको फिर जनरलाइज करना है कि पूरा कोर्स जो बन रहा है, सपोज किसी क्लास का, तो हर सब्जेक्ट वाइज हम उसको नॉलेज दे रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश, संस्कृत, सब सब्जेक्ट को. उसके बाद जनरल एक डिजाइन होना चाहिए कि इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद वो किस लेवल का नॉलेज और किस लेवल का अंडरस्टैंडिंग उसका होगा और किस तरह का वो एक उसका आउटकम होगा. rather than the traditional deductive approach which start with general design and work towards a specific. उन्होंने इंडक्टिव पर जोर दिया, डिडक्टिव पर नहीं, कि जो कि एक जनरल रूल से शुरू होता है और हर सब्जेक्ट पे फिर वो लागू होता है, which was rooted in Taylor's model. Hilda Tava followed the grassroots approach in developing curriculum, जिसमें टीचर्स का रोल जाता है. For her it should be the teachers who should design the curriculum rather than higher authorities. उन्होंने ऑथोरिटीज का रोल को नहीं अप्रिशिएट किया या नहीं उसको सपोर्ट किया. मोर स्पेसिफिकली स्टेटेड दैट टावर अप्रोच believes in allowing the curriculum to be developed or authored by the users, teachers, जिनको पढ़ाना है, जिनको यूज करना है curriculum. Under the Taba model, teachers are expected to begin each curriculum by creating specific teaching learning units and building a general design. हर यूनिट को, उन लोग को ध्यान देकर फिर उसको जनरल एक डिजाइन बनाना है. हर की एक सब्जेक्ट में कितने यूनिट होंगे, किस तरह के यूनिट होंगे और उससे क्या जनरल हम अचीव करेंगे. तो टाबा मॉडल का स्ट्रेंथ क्या है क्लासरूम में, कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स बिगिन थिंकिंग ऑफ ए कॉन्सेप्ट देन डाइव डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट. जो गिफ्टेड हैं, जो तेज बच्चे हैं, वो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझते हैं और सोचते उस पर, और उसके बाद उस सब्जेक्ट की, उस कॉन्सेप्ट के डीप तक जाने की कोशिश करते हैं. फोकसेस ऑन ओपन एंडेड क्वेश्चंस rather than right or wrong questions. Open ended questions allow the students to think broadly. Open ended में they can, it gives opportunity to think, to express, to give their opinions. तो इसलिए दिस मॉडल फोकसेस ऑन ओपन एंडेड क्वेश्चंस. राइट रॉन्ग में क्या होता है, या तो राइट या तो रॉन्ग कुछ कर दिया तो कोई ना कोई तो सही हो जाएगा, लेकिन ओपन एंडेड में आपके व्यूज पूछे जाते हैं, आपके विचार, तो इसमें आपको सोचने का और ओपिनियन देने का मौका होता है. द ओपन एंडेडनेस रिक्वायर मोर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. तब आप सोचते हैं और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, क्योंकि उस समय आप सोच कर उसका बेनिफिट टू अवर गिफ्टेड, उसका आप आंसर निकालते हैं, अपने व्यूज देते हैं, कुछ नया सोचते हैं. The question and answers lend themselves to rich classroom discussions. और इस क्वेश्चन आंसर करवाने से क्या होता है कि क्लासरूम में डिस्कशन होता है. डिस्कशन होने से क्या होता है, डिस्कशन लीड्स पार्टिसिपेशन ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट्स. So each and every student participates in discussion and gives his views. So sometimes brainstorming also takes place and it gives new opinions. easy to assess students learning. इससे क्या होता है, स्टूडेंट की लर्निंग को असेसमेंट हो जाता है आसानी से. अब लिमिटेशंस भी हैं टाबा मॉडल के, क्या है, can be difficult for non-gifted students to grasp of individual difference. All students are not gifted in the classroom, so it will be very difficult for the weak and non-gifted students. Difficult for heterogeneous classroom. If the classroom is heterogeneous, in which all types of students are there, so it is not possible to get same result from all students, because some are sharp students, some are dull. All types of students are there. Some are attentive, some are not attentive. So it is difficult. Works well for fiction and non-fiction may be difficult
easily use, may be difficult to easily use in it, all subjects में it cannot be used easily. So this is the limitation. The last is all I have taken this as last Oliva model, deductive model of curriculum. Oliva model is the deductive model that offers a faculty a process for the complete development of school curriculum. फिर ये फैकल्टी का ही बात कर रहे हैं, ये भी Oliva recognizes the need of students in a particular community are not always the same as the general needs of students throughout our society. तो in the Oliva model of faculty can fashion a plan. क्या है कि उनका कहना है कि किसी कम्युनिटी में जो स्टूडेंट्स का नीड है वो जनरल नीड्स पूरी सोसाइटी में सभी का नीड एक जैसा नहीं हो सकता है. किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में स्टूडेंट्स का नीड अलग है, किसी अलग कम्युनिटीज में नीड्स डिफर इन डिफरेंट कम्युनिटीज. तो जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो डिजाइन कर सकते हैं फॉर करिकुलम ऑफ एन एरिया डिजाइन वेज इन विच इट विल बी कैरिड आउट थ्रू इंस्ट्रक्शन. अब किस एरिया में किस तरह से डिजाइन करना है, किस तरह से करिकुलम बनाना है, सो दैट कि पढ़ाई को उस वहां लिया जा सके आसानी से करवाया जा सके. उसके बाद ये है कि टू डेवलप स्कूल वाइड इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स दैट कट अक्रॉस द एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन सच एज. इसके बाद क्या है कि बहुत सारा क्या करना है ऐसे. ओलिवा मॉडल जो है ये बताता है कि इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम भी होना चाहिए. मतलब एक विषय का एक सब्जेक्ट का स्टूडेंट दूसरे विषय में भी दूसरे डिसिप्लिन के सब्जेक्ट में भी ले सकता है और स्पेशलाइजेशन कर सकता है. करियर एजुकेशन में, गाइडेंस में, क्लास एक्टिविटीज में फॉर ए फैकल्टी टू फोकस ऑन. मतलब इन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम और सब्जेक्ट पर भी जोर दिया. टू डेवलप स्कूल वाइड इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम दैट कट अक्रॉस द एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन सच एज कैरियर एजुकेशन. इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को पढ़ सके, स्पेशलाइजेशन कर सके किस किस चीज में, तो करियर एजुकेशन में, गाइडेंस में, क्लास एक्टिविटीज में. फॉर ए फैकल्टी टू फोकस ऑन करिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ मॉडल टू मेक प्रोग्रामेटिक decisions to allow a faculty to concentrate on instructional components. इसमें क्या है कि फैकल्टी को रोल दिया जा रहा है कि वो कुछ अपना डिसीजन ले सकें किसी किसी क्षेत्र में और बच्चों को आगे बढ़ने में मदद कर सकें. तो यहाँ फैकल्टी के रोल को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है. करिकुलर कंपोनेंट्स का मॉडल को मेन प्रोग्राम के हिसाब से डिसीजन करना, उसका प्रोग्रामिंग करना, टू अलाउ फैकल्टी टू इंस्ट्रक्शनल कॉन्सेप्ट को भी वो डिसाइड कर सकें. तो ओलिवा के हिसाब से ओलिवा मॉडल जो है करिकुलम शुड बी अकॉर्डिंग टू ओलिवा मॉडल. ये नहीं होगा. करिकुलम शुड बी सिंपल, कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमैटिक. तो कल्चर क्या है कि इसमें 12 कंपोनेंट्स हैं ओलिवा के हिसाब से. पहला कंपोनेंट है कि फिलोसॉफिकल फॉर्मुलेशन, टारगेट, मिशन एंड विजन ऑफ द इंस्टीट्यूशन. जिस इंस्टीट्यूशन का करिकुलम बनना है उसका टारगेट क्या है, उसका फिलोसॉफी क्या है, उसका मिशन क्या है, उसके हिसाब से करिकुलम का डिजाइन होना चाहिए. ठीक है. तो अगर मान लीजिए कि कोई कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, और वहाँ गर्ल्स को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, तो उसके हिसाब से वहाँ का करिकुलम होना चाहिए कि ऐसी चीजें पढ़ाएं कि वहाँ से निकलते जो गर्ल्स हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं. तो उनको कुछ इस तरह के स्किल्स सिखाने होंगे. दूसरा है एनालिसिस ऑफ द नीड्स ऑफ कम्युनिटी वेयर द स्कूल इज लोकेटेड. जिस एरिया में स्कूल है वहाँ की कम्युनिटी का क्या नीड है उसके हिसाब से भी करिकुलम बनना चाहिए. द जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस ऑफ करिकुलम. करिकुलम का जनरल पर्पस क्या है और स्पेशल पर्पस क्या है इसका भी ध्यान रखना चाहिए. ऑर्गेनाइजिंग द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट द करिकुलम. डिजाइन को ऑर्गेनाइज करना और इम्प्लीमेंट करना करिकुलम को. फिर अगला है
Component 6 and 7 describe the curriculum in the form of formulation of general objectives and specific learning. कि करिकुलम का जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है और उससे स्पेसिफिक क्या क्या लर्निंग हो बच्चों की, ये डिस्क्राइब होना चाहिए, करना चाहिए। डिफाइन द लर्निंग स्ट्रेटेजी, किस स्ट्रेटेजी कौन सा अडॉप्ट किया जाएगा। preliminary studies on possible strategies or assessment techniques to be used, कौन सा असेसमेंट के लिए टेक्निक यूज होगा। इम्प्लीमेंट द लर्निंग स्ट्रेटेजी, जो भी लर्निंग स्ट्रेटेजी को आपने डिसाइड किया उसको इम्प्लीमेंट करना। और इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग एंड करिकुलम, लर्निंग का भी इवेल्युएशन होना है, जो करिकुलम इम्प्लीमेंट हो गया और उसके बाद करिकुलम का भी इम्प्लीमेंटेशन होगा कि जो सोचकर करिकुलम बनाया गया वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, कि उसमें भी चेंज करने की जरूरत है। सो दैट्स ऑल अबाउट करिकुलम मॉडल। थैंक यू।